Okay. Okay, I'll just check because I don't remember whether I've मी तुम्हाला क्लास वर्क सेंड केला आहे की नाही लक्षात नाही माझ्या. सर मी चेक केला सर, ग्रुपवर चेक केला. नाही सेंड केला मी. नाही केलाय तुम्ही सर. ओके ओके सॉरी आम्ही करतो. म्हणजे एवढे दिवस का नाही रिमाइंड केलं तुम्ही मला. आज तुमचा लेक्चर होता, मग परत रिव्हिजन साठी बघितलं तर ते नाही भेटलं म्हणून. लगेच करायचं. नॉर्मली मी कसं लगेच पाठवतो लेक्चर झाल्या मग असं वाटतं त्या संध्याकाळपर्यंत नाही ना आले लगेच अर्धा एक तासात लगेच रिमाइंड करायचं. मी तेव्हाच फोटो वगैरे क्लिक करतो सर. चालेल सर. आम्ही पाठवतो तुम्हाला. हा okay students, in the last lecture we have done about the how to represent the galvanic cell. And how do we represent the galvanic cell? That always the anode has to be written on the left hand side, cathode has to be written on the right hand side. And interior to the anode and cathode we write what? Insoluble substance. And interior we write down the ions, and they all are in direct contact, and therefore they are connected with a single vertical line. And these two half cell are connected together by using a salt bridge. But if I want to show only half cell, then how do I write the half cell? Ions in contact with insoluble substance and which is in contact with the metal. But insoluble substance always may not be there. So if it is not there, then directly how do we write formula? Ion in contact with the metal. Okay. So we have seen this. Then also we have seen the anode always undergoes oxidation reaction and cathode always undergoes reduction reaction. And if I want to add the anode and cathode reaction, the number of electron has to be the same. Number of electron has to be the same. And if the number of electrons are not same, then we have to make it same by multiplying the equation by appropriate number. Okay. So till here we have seen in the last lecture. Correct. Now I'm just going for the next heading. Yes, now I'm going for the next heading, and the next heading is called as electrode potential, or I can say here the next heading will be electrode potential and cell potential. So abhi, now we have to see what is the meaning of the electrode potential and what is the meaning of cell potential. दोनों का meaning क्या है वो हमें देखना है. Correct. Now the first thing here, suppose like I have taken the zinc metal. Zinc metal. It can be a metal rod or it can be a plate. So this is zinc metal, and the zinc metal is deep into the solution of zinc sulfate. So here in the beaker we are having zinc sulfate solution. So zinc is a metal deep into zinc sulfate. Okay, I'm just assuming that here zinc metal, or else right here at the top, I'm assuming here zinc metal undergoes oxidation. मतलब zinc metal जो यहाँ पे हमारा है, that zinc metal is undergoing which reaction? Oxidation. And if it is undergoing oxidation reaction, that means the zinc metal is acting here as anode, because we know that the reaction taking place is always oxidation. Correct. So what I've said here कि हमारे पास एक zinc metal है और zinc metal को zinc sulfate solution में dip किया हुआ है. Correct. अभी zinc sulfate मतलब यहाँ पे कौन से आयन रहेंगे हमारे पास? अभी जब zinc anode है and when zinc undergoes reaction तो क्या प्रोड्यूस करेगा? Zn will oxidize. Always remember, oxidize मतलब dissolve होना, oxidize मतलब dissolve होना, and zinc will oxidize to gives you what? Zn2 plus. मतलब ये zinc metal हमारे dissolve हो जाएगा. Dissolve होने के बाद solution में क्या पास करेगा? ये जब हमारा metal dissolve हो जाएगा तो solution में क्या पास कर रहा है? Zn2 plus. मतलब in solution I will have which ion? Zn plus 2, positive ion. Okay, because ये हमारा zinc metal continuously dissolved हो रहा है, और डिसॉल्व मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है? Zn+2 आयंस फॉर्म कर रहा है, और ये Zn+2 आयन सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा? पॉजिटिव. एंड देन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन.
So Zn will convert to Zn2 plus, and all zinc ion will pass. Zinc ion will pass into the solution. ये जो zinc ions यहाँ पे form हो रहे हैं, they are passing into the solution. And electron will remain on the plate. Electron कहाँ पे रहेंगे? और electron will remains on electrode. The electrode. So यहाँ पे electron electrode पे है. Okay, electrode. Now what happens? तो इसमें क्या हुआ? The solution has become positively and electrode has become negatively charged. The solution has become positively charged and electrode has become negatively charged. So therefore what happened at the surface of separation of solid and the solution. See here at the surface मतलब फेस, ये हमारा इलेक्ट्रिक फेस है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फेस, और यहाँ पे सरफेस क्या हो रहा है कि हमारा मेटल प्लेट हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द सॉल्यूशन हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज. तो एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन मतलब जहाँ पे दोनों, तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, जहां पे सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? एट द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड एंड द सॉल्यूशन there exists the difference of electrical potential. There exists difference of electrical potential. Correct? Here at the surface of मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमें मिल रहा है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिल रहा है मतलब हमें कुछ तो वोल्टेज मिल जाएगा. तो हियर वी गेट E0 of zinc. E0 मतलब पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड. करेक्ट? मतलब हमें जिंक इलेक्ट्रोड को अगर आप जिंक सॉल्यूशन में डीप कर दोगे तो यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज मिल जाएगा. वोल्टेज क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब जिंक मेटल को सॉल्यूशन में डीप करोगे तो जिंक इज अंडरगोइंग व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन. And because zinc is undergoing oxidation here, the plate has become negatively charged, solution has become completely positively हो गया, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया मतलब हमें क्या पोटेंशियल मिलेगा? हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा. और जो हमें पोटेंशियल मिलेगा उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हमें पोटेंशियल कभी मिलता है? अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन को, कोई भी इलेक्ट्रोड को अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर डीप कर दिया, और डीप करने के बाद इलेक्ट्रोड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वहां पे अगर दोनों के चार्जेस अगर अलग अलग हो गए, क्या फॉर्म होगा? पोटेंशियल मिलेगा. करेक्ट? नाउ कंसीडर द वन मोर. ओके, और यहाँ पे जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? एनोड के कारण मिलेगा. तो इस पोटेंशियल को मैं आई कैन आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड. द पोटेंशियल ऑफ जिंक है उसे मैं पोटेंशियल ऑफ द एनोड. ओके, सिमिलरली आई विल कंसीडर द अदर केस. ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है. सपोज सेकंड एग्जांपल, copper electrode is dipped into copper solution. If copper electrode मतलब अगर हमने copper electrode को, एक मिनट, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, एक स्टूडेंट
तुम्हाला बरोबर दिसतंय का रे? हो सर. हो सर. हाँ ठीक है, ओके. If copper electrode is deep into the copper sulfate solution, then we assume that here copper is acting as cathode. मैं समझ assume करें copper यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, कॉपर पे कैथोड एक्ट कर रहा है, मतलब कॉपर विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन? अगर यहाँ पे कॉपर कैथोड एक्ट कर रहा है मतलब कॉपर विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन? रिडक्शन. तो अभी देखो यहाँ पे ये कॉपर मेटल है, ये कॉपर मेटल है, करेक्ट. कॉपर मेटल इज डीप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो ये हमारा कॉपर मेटल है. ये कॉपर मेटल क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड. हम लोगों ने कंसीडर किया ये कैथोड है. ओके, देन वी आर डीप इनटू विच सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट. ये हमारा कॉपर सल्फेट है, मतलब यहाँ पे कॉपर आयंस भी है, यहाँ पे सल्फेट आयंस भी है, दोनों टाइप के आयंस. करेक्ट, कॉपर आयंस भी है और सल्फेट आयंस भी. अभी रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉपर आयंस है दे विल गो टुवर्ड्स द कैथोड. ये कॉपर आयंस इधर चला जाएगा प्लेट के पास. ओके, ये कॉपर आयंस यहाँ पे प्लेट के पास चला जाएगा और कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा. ओके, और इलेक्ट्रोड से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा. इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये कॉपर जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उससे उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए. और हमें मालूम है अगर कोई भी मेटल दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी मेटल जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो इसका मतलब सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? Na+. मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हमारा कॉपर प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इलेक्ट्रॉन 2+ आयन यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारे कॉपर 2+ आयन खत्म हो जाएंगे. फिर कॉपर 2+ आयन खत्म होने के बाद यहाँ पे कौन सा आयन बचेगा सॉल्यूशन के अंदर? सल्फेट बचेगा. तो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन बच रहा है, मतलब सॉल्यूशन इज गोइंग. सॉल्यूशन कैसे बनेगा? नेगेटिवली चार्ज बनेगा. तो सी हियर now electrode is positively charged, correct? Solution is negatively charged, so there's the electrical. So what we got here? There exists difference of electrical potential. There exists the difference of electrical potential, correct? Electrical potential. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म हुआ, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ई मतलब पोटेंशियल ऑफ कॉपर. और हमारा कॉपर कैथोड है तो आई कैन से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? पोटेंशियल ऑफ कैथोड मिल जाएगा. पोटेंशियल ऑफ कैथोड मिल जाएगा. ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा मैं उसे लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ द कॉपर या पोटेंशियल ऑफ द कैथोड. Potential of the cathode because of which reaction? Reduction. Potential of the cathode because of which reaction? Reduction. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पे जो मुझे पोटेंशियल मिला था वो क्या था? पोटेंशियल ऑफ एनोड. और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था? ऑक्सीडेशन. तो और अभी देखो तुम यहाँ पे समझ में आ जाएगा हम लोग एनोड को हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हैं. क्यों? देखो जब जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लेट नेगेटिव हुआ, प्लेट नेगेटिवली चार्ज हुआ, इसलिए एनोड को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं गैल्वानिक सेल. और यहाँ पे कैथोड को हम लोग पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लेट पॉजिटिव रहेगा और प्लेट पॉजिटिव रहेगा इसलिए कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है. गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव क्यों और कैथोड पॉजिटिव क्यों उसका एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर आ गया. एनोड नेगेटिव है बिकॉज प्लेट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज और कैथोड पॉजिटिव है बिकॉज द प्लेट इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट देखे कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रोड को अगर सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो आइदर इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ओके, और इट विल अंडरगो रिडक्शन. ओके, बट इन बोथ द केसेस क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मिल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस द करंट विल फ्लो एंड करंट फ्लो होगा इसलिए हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा. मतलब वो इलेक्ट्रोड का
हमें वोल्टेज मिल जाएगा, करेक्ट। तो एनोड का मिलेगा तो उसे क्या बोलोगे आप, एनोड पोटेंशियल, एंड बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन। और कैथोड का जो आपको मिलेगा उसे क्या बोलोगे आप, कैथोड पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन रिडक्शन। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ अभी आगे हमें देखना है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे मिलेगा, ओके तो 1 मिनट। तो अभी देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे बीकर में क्या किया था मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड डीप इनटू जिंक सल्फेट, और ये एक्ट कर रहा था एनोड, करेक्ट। दूसरा बाजू में बीकर था मेरे पास, जहां पे मैंने क्या किया था, कॉपर इलेक्ट्रोड डीप इनटू कॉपर सल्फेट, कॉपर इलेक्ट्रोड डीप इनटू कॉपर सल्फेट, और ये हमारा था कैथोड, करेक्ट। और यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड डीप इनटू जिंक sulfate, zinc electrode deep into zinc sulfate. Externally they are connected with the help of wire, and internally they are connected with the help of salt bridge. ये हमारा सेल फॉर्म हो गया। तो अभी मालूम है कि ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड से मुझे क्या मिलेगा, एनोड से मुझे मिलेगा पोटेंशियल ऑफ एनोड, बट बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन रिडक्शन। बिकॉज एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे आप, OXI। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो क्या लिखोगे आप, RED। एंड देन अगर मुझे सेल का पोटेंशियल लेना, मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया, मतलब ये इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना है, इस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना है, दोनों वोल्टेज अभी मुझे मिल गए। तो अभी मुझे निकलना है सेल पोटेंशियल, सेल का वोल्टेज। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, सी सेल, ये मतलब पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू potential of the anode, potential of the anode because of oxidation reaction, plus potential of the cathode, potential of the cathode because of, potential of the cathode because of reduction reaction। तो ये हमारा सेल पोटेंशियल, मतलब अगर मुझे एनोड का वैल्यू मालूम है, अगर मुझे कैथोड का वैल्यू भी मालूम है, तो दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल, मतलब सेल का वोल्टेज मिलेगा, सेल का वोल्टेज मिल जाएगा, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा सेल है। अगर मेरे पास दो अलग अलग सेल है, और दो अलग अलग सेल का अगर मुझे पोटेंशियल कंपेयर करना है, ये मेरा एक सेल है, ऐसा मेरे पास दूसरा भी सेल रहेगा, तो दो सेल का अगर मुझे पोटेंशियल कंपेयर करना है, तो दोनों सेल कौन से कंडीशन में होने चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए। मतलब अगर मुझे कोई भी दो सेल दिया, बोले कि दो सेल का पोटेंशियल कंपेयर करो, और बाद में बोलो किस सेल का पोटेंशियल हायर है और किस सेल का पोटेंशियल लोअर है, तो दो सेल का पोटेंशियल में कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन कभी अगर दोनों सेल का कंडीशन सेम रहेगा, कंडीशन मतलब कौन सा, तो हियर आई एम जस्ट गोइंग फॉर द हेडिंग कॉल्ड एज standard potential, we'll go for which heading, standard potential। standard potential का मतलब what, standard potential का मतलब होता है कि देखो ये हमारा नॉर्मल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल थर्मोडायनामिक्स में बार बार देखा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, द सॉल्यूशन, मतलब हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशंस रहेंगे, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, द सॉल्यूशन should have concentration of 1 मोलर। मतलब मेरे पास जो दोनों सॉल्यूशन रहेंगे, मेरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पे भी 1 मोलर, यहाँ पे भी 1 मोलर। देन अगर कोई गैसेस रहेंगे देन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। गैसेस should have a pressure of 1 बार। गैसेस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, या हम लोग लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर। मतलब अगर कोई हमारे यहाँ पे गैस इन्वॉल्व है,
तो गैस का प्रेशर कंपल्सरी कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एंड ये हुआ, एंड देन थिंग्स व्हाट, द प्योर, अगर कोई सॉलिड है तो प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर मतलब कोई लिक्विड, ये देखो यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट डिसॉल्व्ड इन वाटर है तो ये एक्वियस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये एक्वियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्योर लिक्विड है या कोई प्योर सॉलिड है, देन सॉलिड एंड लिक्विड शुड बी प्योर। ओके, द प्योर एंड लिक्विड शुड बी प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड, और आई कैन से प्योर सॉलिड, or I can say solid and liquid should be in the pure form at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर हमारे इलेक्ट्रोड में जो भी यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहेगा, ये हमारा एनोड जिंक मेटल, ये हमारा कॉपर मेटल अगर प्योर रहेगा, करेक्ट, यहाँ का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री रहेगा, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, प्रेशर अगर 1 मोलार रहेगा, तो जो भी मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, आई कैन कॉल हियर 10, जो मुझे एनोड से मिलेगा, जो मुझे एनोड से पोटेंशियल मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और जो मुझे कैथोड से पोटेंशियल मिलेगा उसे क्या मैं बोलूंगा, स्टैंडर्ड, ये जीरो मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ रिडक्शन, करेक्ट। तो ये है, मतलब दोनों में समझ में डिफरेंस में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी एनोड का पोटेंशियल था, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं था कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है कि नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, मतलब कंपल्सरी मुझे मालूम है कि जो भी एनोड रहेगा, वो जो मेटल रहेगा वो प्योर फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहेगा, और टेम्परेचर कंपल्सरी 25 डिग्री ही रहेगा। सिमिलरली कैथोड, अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड लिखा, मतलब कंपल्सरी हमारा कैथोड जो भी रहेगा वहां पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलार रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, अभी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगर इन्वॉल्व रहेगा तो प्रेशर कितना रहेगा, 1। तो एनोड वही है, कैथोड भी वही है, बट नाउ दे आर इन विच कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नाउ सेम फॉर्मूला, तो मुझे जो सेल पोटेंशियल जो मिलेगा, जो मुझे सेल पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, बिकॉज इफ द इलेक्ट्रोड्स आर इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, देन द सेल पोटेंशियल, सेल का वोल्टेज जो भी मुझे मिलेगा वो भी क्या रहेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये जो मैंने फॉर्मूला भी लिखा उसको मैं चेंज करता हूँ, तो क्या चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सी सेम है, मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया, लेकिन दोनों फॉर्मूला डिफरेंस पता चलेगा कि इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब मुझे मालूम है माय इलेक्ट्रोड्स आर इन द विच कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन थोड़ा और मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा एनोड है, एनोड, एनोड का कौन सा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, रिडक्शन, क्योंकि एनोड पे रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन। लेकिन इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है, मतलब यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन व्हाट इज EOX है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आई जस्ट राइट डाउन द मीनिंग कि EOXI का मतलब क्या होता है, और आई जस्ट राइट डाउन हियर ओनली, इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन potential. This is called as standard reduction potential. Okay, मतलब यहाँ पे भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे मतलब इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं थे, लेकिन अभी मैंने इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में करवा के ले लिया है, तो मुझे जो भी पोटेंशियल मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी,
एनोड से मुझे मिलेगा ऑक्सीडेशन, कैथोड से मुझे मिलेगा रिडक्शन। ओके, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब ओके according to IUPAC कन्वेंशन, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग सिस्टम यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल of an electrode is taken as the standard reduction potential. Okay, see here, according to IUPAC convention, okay, क्या हमें क्या करना है कि जब भी मैं कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल लिखूंगा, मतलब पोटेंशियल जब लिखूंगा, ओके, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एनोड का कौन सा पोटेंशियल देख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन, कैथोड का कौन सा पोटेंशियल देख रहा हूँ, रिडक्शन। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, करेक्ट, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो तो कंपलसरी कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ऐसा क्यों उन्होंने बोला मालूम है, देखो अभी के यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जिंक एक्ट कर रहा है एनोड, ओके, तो एनोड का हम लोग कौन सा पोटेंशियल ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कॉपर क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड, तो कॉपर का हम लोग क्या ले रहे हैं, रिडक्शन ले रहे हैं। लेकिन कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे जिंक एनोड है और ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे कॉपर कैथोड है तो रिडक्शन है, करेक्ट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करूंगा वैल्यू, और यहाँ पे मैं कॉपर का रिडक्शन यूज करूंगा। लेकिन अगर हम लोगों ने दूसरा कोई अगर सेल बना दिया, दूसरा सेल अगर मैंने बना दिया, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कॉपर या मे बी और एग्जाम्पल अगर मैंने जिंक, 1 मिनट, अगर मैंने जिंक और एल्यूमिनियम का सेल बनाया, अगर मैंने जिंक और एल्यूमिनियम का सेल बना दिया तो एल्यूमिनियम फिर बनेगा एनोड। देखो जिंक और कॉपर का जब आप सेल बनाते हो तो जिंक एक्ट करता है एनोड, कॉपर एक्ट करता है कैथोड। ये कैसे डिसाइड करना है हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर इसका मुझे इतना ही बोलना है कि यहाँ पे जिंक एक्ट कर रहा है एनोड तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने जिंक और एल्यूमिनियम को कंबाइन कर दिया, अगर मैंने जिंक और एल्यूमिनियम को कंबाइन कर दिया तो तब एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एनोड, और अगर एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एनोड मतलब एल्यूमिनियम का कौन सा पोटेंशियल लगेगा, ऑक्सीडेशन लगेगा, और जिंक का कौन सा लगेगा, रिडक्शन लगेगा। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में और इस कंसेप्ट में हमें जिंक का ऑक्सीडेशन लग रहा है, लेकिन वो वाले एग्जांपल में हमें जिंक का रिडक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लर्न करना पड़ेगा और हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी लर्न करना पड़ेगा, दो वैल्यू लर्न करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हमें जब भी फॉर्मूला में वैल्यूज लिखने हैं, हमें जब भी फॉर्मूलाज में वैल्यूज लिखने हैं, हमेशा कौन से फॉर्म में हमें लिखने, रिडक्शन के फॉर्म में लिखने। कौन से फॉर्म में लिखने, रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखने। तो कैसे रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने कन्वेंशन दिया कि अगर मेरे पास कोई एनोड है और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मुझे मालूम है, तो अगर मुझे रिडक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एनोड ही है। तो अगर मुझे कोई ऑक्सीड, यहाँ पे एक मिनट सॉरी, अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मालूम है और मुझे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या रहेगा, ये अगर वैल्यू मेरा प्लस है तो ये वैल्यू क्या बनेगा, माइनस बनेगा। यही चेंजेस होता है, मतलब यही चेंज है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उस इलेक्ट्रोड का
रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो सेम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन ऑफ जिंक, मतलब जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -0.76 वोल्ट स्टील। तो अगर मुझे इसको ऑक्सीडेशन में लिखना रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक कितना आएगा, +0.76 वोल्ट। तो नॉर्मली क्या बोलना है कि कोई भी एलिमेंट के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल रहेगा, खाली साइन डिफरेंट रहेगा, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन। तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखा कि अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो अगर ये वैल्यू मेरा प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस, या अगर मेरा रिडक्शन माइनस है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं निगेटिव भी हो सकते हैं, खाली दोनों वैल्यूज सेम रहेंगे, साइन अलग रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, ओके, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जब मैं बात करूंगा तो मुझे किसके बारे में हमेशा सोचना है, रिडक्शन के बारे में सोचना है। इसलिए मैं अभी मेरा अपना फॉर्मूला क्या था, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये हमारा फॉर्मूला हम लोग मिला था, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, करेक्ट, कि अगर मुझे सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। लेकिन अभी मैंने बोला कि हम लोग एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो भी वैल्यू अवेलेबल रहेंगे वो हमेशा कौन से वैल्यूज अवेलेबल रहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन के वैल्यूज रहेंगे, करेक्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर अगर मुझे कोई इलेक्ट्रोड दिया रहेगा तो इलेक्ट्रोड का हमेशा कौन सा वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे E0 ऑक्सीडेशन है, तो अगर मुझे E0 ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर फॉर्मूला E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन क्या लिखूंगा मैं, माइनस E0 रिडक्शन। ओके, या देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये एनोड ही है, एनोड का रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन मैं जो यहाँ पे जब वैल्यू लिखूंगा तो कौन सा वैल्यू लिखूंगा, मैं रिडक्शन का वैल्यू लिखूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करके ले लिया है, करेक्ट। मतलब देखो, मतलब अगर मेरा एनोड जिंक था, तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन का वैल्यू मैं कितना लिखता था यहाँ पे, 0.76, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन का वैल्यू कितना लिखा होता, 0.76 लिखा होगा। लेकिन अभी मैंने ऑक्सीडेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन में, तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू कितना लिखूंगा, -0.76। तो देखो ना, ये फॉर्मूला में माइनस साइन है, और यहाँ पे जब मैं -0.76 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ रहा था, प्लस, तो हुआ। मतलब हम लोग एक मेटल का ऑक्सीडेशन दूसरे मेटल का रिडक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या किया, ऑक्सीडेशन मतलब ये जो वैल्यूज है उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑक्सीडेशन को जब रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो प्लस विल चेंज टू माइनस, और ये सेम रहेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कैथोड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हैं अरे एनोड बोल रहे हो और एनोड का रिडक्शन नहीं, एनोड का रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, खाली उसका पोटेंशियल हम लोगों ने रिडक्शन लिख रहे हैं, माइनस साइन लेके। ओके, अभी मैं उसका रीअरेंज करूंगा, तो रीअरेंज करके क्या होगा, E0 सेल इज इक्वल टू, ये प्लस है तो पहले लिखूंगा E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी रिडक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोला है कि जब आपको कोई भी पोटेंशियल दिया रहेगा तो रिडक्शन ही दिया रहेगा, आपको जब कोई भी पोटेंशियल दिया रहेगा वो रिडक्शन ही दिया रहेगा, तो यहाँ पे रिडक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन हमें मालूम है कि जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा वो वैल्यू कौन से रहेंगे, रिडक्शन रहेंगे। जब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा वो भी कौन से वैल्यू रहेंगे, रिडक्शन रहेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर
जब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, मतलब मैं कैथोड का कौन सा पोटेंशियल ले रहा हूँ, रिडक्शन। जब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द एनोड, मतलब कौन सा पोटेंशियल मैं ले रहा हूँ, रिडक्शन ले, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यहाँ पे बार बार रिडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बना, जिस फॉर्मूला को आप यूज करके अपने सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रोड दिया रहेगा तो इलेक्ट्रोड को अगर आप सॉल्यूशन में डीप करते हो तो मिलने वाले पोटेंशियल को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलोगे बोलोगे, बराबर है। और दोनों इलेक्ट्रोड को अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो उसे आप क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल। और ये हमारा फॉर्मूला है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, कौन सा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ओके, यस। अभी यहां तक ये इस पॉइंट के ऊपर किसी को कोई डाउट है, मुझे कुछ पूछना है? ये स्टूडेंट, एनीवन हैज एनी डाउट इस कंसेप्ट में खाली, मतलब ओके ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ, फिर अभी हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर, सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर और सेल रिएक्शन के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई जस्ट स्टार्ट। न्यूमेरिकल based on cell representation, cell reaction and standard cell potential। ओके, ये हुआ। ओके, यहाँ पे I'll just start with the numerical, so I'll just go to page number, 1 minute, I have the page number with me। Okay, then okay, this is a problem। page number 118, question number 5। construct the galvanic cell, 1 minute। कंस्ट्रक्ट द, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ गैल्वानिक सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और उन्होंने इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड कोबाल्ट का है, दूसरा इलेक्ट्रोड Mn का है, एंड दे हैव गिवन द E0 ऑफ कॉपर एंड दे हैव गिवन द E0 ऑफ Mn। ये वैल्यूज दिए हुए हैं, कॉपर का वैल्यू दिया है और दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, और बोला है कैलकुलेट द E0 सेल। और देखो उन्होंने सेल फॉर्मूला कैसे लिखा है, सो दे हैव जस्ट गिवन वन, आई राइट डाउन हियर, दे हैव गिवन द 2 हाफ सेल, द हाफ सेल फर्स्ट। हाफ सेल कैसे लिखेंगे, पहले लिखना है आयंस, आयंस इन कांटेक्ट विद कोबाल्ट, ये फर्स्ट हाफ सेल है। सेकेंड हाफ सेल कौन सा दिया हुआ है, Mn2 plus in contact with Mn, and they also given here E0 of cobalt and E0 of Mn दिया हुआ है। E0 of cobalt is 1.82 volt and E0 of Mn is minus 1.18 volt, correct? And they have asked us calculate the value of E0 cell। तो हमारा सेल पोटेंशियल कितना होगा कैलकुलेट करो। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, एक E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए बोला, और दूसरा बोला है
कंस्ट्रक्ट अ गैल्वानिक सेल, मैं न्यूमेरिकल नंबर लिखता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 118, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 5, ओके। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, एक E0 सेल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला, और बोला है कंस्ट्रक्ट सेल, सेल कंस्ट्रक्ट करो, करेक्ट। अभी सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने खाली जस्ट बोले 2 हाफ सेल हमारे पास है, तो एक को हमें यूज करना पड़ेगा एनोड और दूसरे को हमें यूज करना पड़ेगा कैथोड। एक को यूज करना है एनोड और दूसरे को यूज करना है कैथोड। अभी उन्होंने बोला नहीं कि एनोड कौन है कैथोड कौन है, कुछ बोला नहीं, तो हमें एक कंसेप्ट है हमारे पास, जिस इलेक्ट्रोड का हायर पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रोड विथ हायर पोटेंशियल विल, यहाँ पे एक सेंटेंस था अपने बुक में, आई विल जस्ट शो इट टू यू। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि while constructing a galvanic cell, मतलब अगर हमें कोई galvanic cell अगर बनाना रहेगा by using the 2 electrode, then electrode with higher potential is taken as a cathode and that with the lower standard potential is taken as a anode always। मतलब अगर हमें एनोड कौन सा लेना है और कैथोड कौन सा लेना है अगर मालूम नहीं रहेगा, तो जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हायर रहेगा, हायर, उसे क्या लेना है, कैथोड लेना है, और जिसका पोटेंशियल लोअर रहेगा उसे क्या लेना है, एनोड लेना है, करेक्ट। तो हियर देखो 2 वैल्यूज मेरे पास है, कोबाल्ट का वैल्यू 1.82 है और Mn का वैल्यू -1.18। हु हैज अ हायर पोटेंशियल, कोबाल्ट। So I can just write here, since standard potential of the cobalt। ना अभी तुम लोग ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, ये कौन सा पोटेंशियल है, कोई मुझे बोलेगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, ये मैंने जो कोबाल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल लिखा हुआ है, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? यस, रिडक्शन है, क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन ही है, तो इसलिए वो रिडक्शन बोलने की जरूरत भी नहीं है, रिडक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं, कंपल्सरी इसका नाम आप कैसे बोलोगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट। मतलब मुझे मालूम है कि ये पोटेंशियल मेरा रिडक्शन ही है, अगर उन्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें देना है तो वो लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन ही है, लेकिन हमें रिडक्शन भी बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे खाली क्या रेडी करूंगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट। सो सिंस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कोबाल्ट इज ग्रेटर than standard potential of Mn, therefore cobalt will act as cathode and Mn will act as anode। ओके, ये हो गया। तो कोबाल्ट विल एक्ट एज अ कैथोड एंड Mn विल एक्ट एज अ एनोड, हो गया। तो अभी हम लिख सकते हो E0 सेल is equal to E0 of cathode minus E0 of anode। Cobalt will act as a cathode, तो cobalt act करेगा cathode, Mn will act as a anode, Mn act करेगा anode, करेक्ट। अब वैल्यूज लिखो, कोबाल्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.82, माइनस मैंगनीज का वैल्यू दिया हुआ है -1.18, तो यहाँ पे 1.82 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1.18, अगर आप ऐड करोगे तो 8 + 2 10, 8 + 2 10, सो 3.0। तो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब हमारा सेल का जो पोटेंशियल हो कितना रहेगा, 3 मोलर। और यहाँ पे कंपल्सरी स्टैंडर्ड का मतलब ये जो हमारा कोबाल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलर। यहाँ पे जो Mn रहेगा उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलर। कैसे मैंने चूज कर दिया, बिकॉज ये हमारे कौन से पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कंपल्सरी कितना रहेगा, 1 मोलर रहेगा। और ये जो हमारे मेटल्स है दे आर गोइंग टू बी इन द विच स्टेट, प्योर स्टेट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, E0 सेल हो गया। अभी E0 सेल के बाद दूसरा पार्ट क्या हमें करना है, सेल कंस्ट्रक्ट करना है। सेल कंस्ट्रक्ट मतलब हमें सेल का फॉर्मूला लिखना है, तो सेल फॉर्मूला विल राइट डाउन, सेल
सेल फॉर्मूला। अब इस सेल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनोड को लिखते हैं लेफ्ट साइड में, कैथोड को लिखते हैं राइट साइड में। एनोड हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड, कैथोड हैज टू बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एनोड देखो, एनोड कौन है, एनोड मैंगनीज है, करेक्ट, एनोड मैंगनीज है। तो जब मैं एनोड लिखूंगा तो सबसे आउटसाइड में क्या लिखूंगा, मेटल। मेटल के इंटीरियर साइड में क्या लिखना है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं, डायरेक्टली आयंस है। तो मैं इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा Mn2+ आयन, और हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में था, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, और ये आएगा सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा एनोड बना। अगर मुझे कैथोड बनाना है, कैथोड, अगर मुझे कैथोड लिखना है तो कैथोड में सब कौन कैथोड है, कैथोड इज एक्टिंग एज अ कोबाल्ट। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट, तो CO, कोबाल्ट इन द सॉलिड स्टेट, इन कॉन्टैक्ट विथ क्या आएगा यहाँ पे, CO3+ हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। मतलब नॉर्मली मेटल है, मेटल के इनर साइड में क्या आ जाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे भी कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, आयन। तो ये हमारा बना सेल फॉर्मूला। मैंगनीज इज एक्टिंग एज अ एनोड एंड कोबाल्ट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। ओके, फिर एनोड और कैथोड कैसे हमने डिसाइड कर दिया, या हमारे पास दो वैल्यूज दिए थे, तो जो वैल्यू हायर रहेगा उसे क्या लेना है, हमें कैथोड लेना है, और जो वैल्यू हायर है लोअर रहेगा उसे क्या लेना है, एनोड। करेक्ट, ये एक प्रॉब्लम हुआ। और एक दो प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स है। वन मिनट, ओके 1 मिनट। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम दिया हुआ है, पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 1 and 4। टेक्स्ट बुक सामने रखा है क्या तुम लोगों ने? हाँ बच्चों, टेक्स्ट बुक समोर ठेवता का रे? यस, ओके। देखो पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 1 and 4, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, उन्होंने क्या दिया है प्रॉब्लम, सी हियर, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ कॉपर आयन gives you 2H+ ion and plus copper, and they are given E0 of copper। E0 of copper मतलब our cell is in the standard। उन्होंने बोला E0 क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा ये, तो व्हाट इज रिएक्शन दे हैव गिवन, सी हियर, H2 is a gas having pressure 1 atmosphere plus Cu2 plus having concentration 1 molar, 2H plus having concentration 1 molar, and copper in the which state, solid, okay, and they have given here E0 of copper, that is 0.34 volt। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे E0 सेल कैलकुलेट करना है, एंड यूनिट विल बी व्हाट, वोल्ट। E0 सेल का यूनिट वोल्ट आएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कैथोड और एनोड डिसाइड करने के लिए उन्होंने कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, कौन से 2 इलेक्ट्रोड है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कॉपर। तो कॉपर का पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वो लोग कभी भी प्रोवाइड नहीं करते। ओके, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन का पोटेंशियल नहीं दिया है, क्योंकि हमें मालूम है, हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे, कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे फिर हमें इससे डिसाइड करके बोले कि यहाँ पे कि अभी दोनों में हायर किसका, कॉपर है। दोनों में हायर अगर कॉपर है तो कॉपर क्या एक्ट करेगा, कैथोड, करेक्ट, और ये क्या एक्ट करेगा, एनोड। लेकिन हम पहले यहाँ इधर से डिसाइड करेंगे। देखो हमें उन्होंने रिएक्शन दिया है, यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी दिया होगा, हम लोग रिएक्शन से डिसाइड करेंगे।
रिएक्शन से डिसाइड करेंगे। देखो रिएक्शन में किस एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है, रिएक्शन में किस एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है? हाइड्रोजन का, करेक्ट। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का चार्ज, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं, मतलब जीरो लेने का, जीरो और यहाँ पे +1, तो आई राइट हियर H2 गिव्स यू 2H+, हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ रहा है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन रहेगा? दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करो H2 H2, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ये क्या काम करेगा? एनोड का काम करेगा, करेक्ट। और अगर कॉपर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, कॉपर यहाँ पे 2+ है और कॉपर 0 है, तो यहाँ पे कॉपर 2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर। ये कौन सा रिएक्शन है? हमारा रिडक्शन है। देखो Cu 2+ है और यहाँ पे Cu 0 बन रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। और ये कैथोड है। तो मैंने कैथोड, एनोड और कैथोड कैसे आइडेंटिफाई कर दिया? मैंने कैथोड और एनोड कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि मैंने रिएक्शन देखा, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दिया था। प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या था? उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया था, इसलिए मैंने कहां से डिसाइड कर दिया? E0 सेल से डिसाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो मुझे रिएक्शन से डिसाइड करना है कि यहाँ पे कॉपर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉपर रिडक्शन हो रहा है, मतलब कॉपर क्या एक्ट करेगा? कैथोड। और हाइड्रोजन का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या एक्ट करेगा? एनोड, ऑक्सीडेशन। अभी मुझे कैथोड और एनोड पता चल गया, तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू व्हाट? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? कॉपर। एनोड कौन है? हाइड्रोजन। और हमें मालूम है कॉपर का पोटेंशियल कितना है? 0.34 है, एनोड का पोटेंशियल 0 है, तो सेल पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। सो वी गॉट हियर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। ओके, okay, 1 minute, I'll just go for the one more numerical. समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे मैंने कैसे डिसाइड किया? ये वैल्यूज को देख के नहीं डिसाइड किया मैंने, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दिया था। उन्होंने रिएक्शन अगर दिया रहेगा तो वी हैव टू डिसाइड बाय यूजिंग द रिएक्शन, करेक्ट? ओके, आई जस्ट डू वन मोर. Page 118, question number 2-5. Page number 118, question number 2-5. Okay. They have given, I'll write the reaction. They have given the reaction 3Ni in the solid state plus Al3 plus having concentration 1 molar, 3Ni2 plus having concentration 1 molar plus 2Al in the solid state. देखो हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है क्योंकि हमारे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और मेटल्स आर इन द प्योर स्टेट, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से हमें पता चलता है कि हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, करेक्ट? एंड बस, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दे गिवन? E0 ऑफ Ni is minus 0.25 volt and E0 of aluminium is minus 1.66 volt. देखो उन्होंने E0 ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया है, उन्होंने E0 ऑफ Ni भी दे दिया, दोनों वैल्यू दी, लेकिन जब उन्होंने से आपको सेल रिएक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेल रिएक्शन दिया है। तो जब सेल रिएक्शन दिया रहेगा तो सेल रिएक्शन से डिसाइड करो कि हु विल एक्ट एज अ एनोड एंड हु विल एक्ट एज अ कैथोड। हाँ, अगर सेल रिएक्शन नहीं दिया है, ये सेल रिएक्शन अगर नहीं दिया है तो यहां से डिसाइड करो। ओके, तो सेल रिएक्शन दिया है तो सेल से डिसाइड करो। देखो किसका चार्ज बढ़ रहा है? सेल रिएक्शन में कौन से एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है?
Ni, करेक्ट, वेरी गुड. Ni का चार्ज बढ़ रहा है, तो हियर Ni will gives you what? Ni2+. तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, करेक्ट, ऑक्सीडेशन हुआ. एक्चुअली उन्होंने इक्वेशन का लिखने के लिए बोला ही नहीं, डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है, खाली E0 सेल कैलकुलेट करो. लेकिन तो भी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, तो Ni gives you what? Ni2+. और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिटर्न विद साइड, राइट साइड. देखो बैलेंस करो, Ni1 Ni1. यहाँ पे चार्ज 0 है, +2 एंड -2. ये ऑक्सीडेशन है, मतलब ये एक्ट करेगा एनोड. कौन से एलिमेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है? एल्यूमिनियम का डिक्रीज हो रहा है. Al3+ से Al बन रहा है, तो यहाँ पे Al3+ है और यहाँ पे Al बन रहा है. चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन रहेगा? रिडक्शन. रिडक्शन, करेक्ट. एंड रिडक्शन मतलब इट विल एक्ट एज अ कैथोड. इट विल एक्ट एज अ कैथोड. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो देखो यहाँ पे 0 चार्ज है, तो +3 और यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये हमारा रिडक्शन. बस, तो हमें इतने एक्चुअली इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. बिकॉज अगर दोनों इक्वेशन को अगर हमें ऐड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी द सेम. लेकिन इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि दे हैव आस्क्ड ओनली टू कैलकुलेट व्हाट? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो. और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? विच इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज अ एनोड एंड विच इज एक्टिंग एज अ कैथोड. तो हमें पता चला कि निकेल इज एक्टिंग एज अ एनोड एंड एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ कैथोड. तो यहाँ पे मैं राइट डाउन द is equal to E0 of cathode minus E0 of anode. Cathode is aluminum, anode there is a connectivity problem. 1 minute here. Yes, we got here standard. Can you able to hear me? Dipesh, Gauri, please reply. Can you able to hear me? Yes, okay, ठीक है. Thank you, Sairaj. Dipesh, okay. तो E0 cell मिला -1.41 volt मिला E0 cell, okay. And एक numerical है, but I don't know whether we have done it last time or not. I'll just check whether we have done or not. Okay, last equation है page 118, question number 2. हॅलो सर. Yes, yes. सर इथे -0.25 ग्रेटर असेल ना? हा, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. कसं माहितीये, या ठिकाणी कसं आहे प्रॉब्लेम, की जर तू या व्हॅल्यूज बघितल्यास तर तू याला ही व्हॅल्यू हायर झाली ना. हो सर. मग याला तू काय कन्सिडर करशील? कॅथोड. हो. याला काय कन्सिडर करशील? एनोड. एनोड, बरोबर. आणि मग तुझं पोटेन्शियल बरोबर पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर. हो सर. मग जर या व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या, पण या व्हॅल्यूज कन्सिडर निकेल कॅथोड होईल, पण त्यांनी दिलेल्या इक्वेशन मध्ये निकेल काय आहे? एनोड. एनोड आहे. म्हणून आपल्याला इक्वेशन वन घ्यायचं. म्हणजे कसं माहितीये तुला बघायचं आहे, जर आपल्याला हे इक्वेशन दिलं नसतं आणि जर आपल्याला सेल कन्स्ट्रक्ट करायचा असता, तर तू निकलला काय कन्सिडर केलं असतंस? कॅथोड, बरोबर, कारण हायर व्हॅल्यू आहे. आणि अल्युमिनियमला काय कन्सिडर केलं असतंस? एनोड. एनोड. पण त्यांनी रिएक्शन दिली, मग पहिली रिएक्शन बघायची. म्हणजे त्यांनीही आपल्याला रिएक्शन दिलेली आहे, त्यांच्याकडे ही रिएक्शन चालू आहे, बरोबर. पण त्यांच्या रिएक्शन प्रमाणे Ni काय आहे?
एनोड आहे. अल्युमिनियम काय आहे? कॅथोड. हा, मग त्यांच्या रिॲक्शन प्रमाणे घ्यायचं. जर रिॲक्शन दिले आणि आपल्याला आन्सर निगेटिव्ह आलं, आपल्याला आन्सर निगेटिव्ह आलं, हे आन्सर काय इंडिकेट करतं माहिती आहे आपल्याला, की त्यांनी जो सेल कनेक्ट केलेला तो चुकीचा आहे आणि आपल्या आन्सरवरून कळतंय, बरोबर ना. आपलं आन्सर निगेटिव्ह आलं, आन्सर जर आपला E0 सेलचा आन्सर जर निगेटिव्ह आला ना, त्याचा अर्थ काय होतो माहितीये, आपला जो सेल आहे तो कसा आहे, आपला जो सेल आहे तो कसा आहे. सर म्हणजे आपण रिएक्शन करतोय ते. हा, नाही म्हणजे त्यांनी एक आपल्याला रिॲक्शन दिली, त्यांनी आपल्याला रिॲक्शन दिली आणि सांगितलं या रिॲक्शनचं सेल पोटेन्शियल काढा. आपण या रिॲक्शनचं सेल पोटेन्शियल निगेटिव्ह आलं आणि रिॲक्शनचं कुठल्याही बॅटरीचं व्होल्टेज निगेटिव्ह असेल का? आपल्या घरातली कुठलीही लहान मोठा सेल बॅटरी काही व्होल्टेज कधी निगेटिव्ह असेल का? नाही. व्होल्टेज निगेटिव्ह म्हणजे बॅटरी चालेल का? नाही सर. नाही. याचा अर्थ त्यांनी जे कनेक्शन केलंय ते चुकीचं आहे, पण त्यांनी रिॲक्शन दिली त्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेट केलं. याचाच अर्थ मग आपल्याला याच्यानं बरोबर कळतं, त्यांनी काय केलंय, अल्युमिनियमला घेतलंय कॅथोड, बरोबर, आणि निकेलला घेतलंय एनोड, पण ते चुकीचं आहे. कारण आपल्याला इथून कळलं, आपल्याला तुला बरोबर पॉईंट तुला कळला की ज्याची व्हॅल्यू हायर आहे तो काय असायला पाहिजे होता, कॅथोड, आणि हा एनोड असायला पाहिजे. मग आन्सर आपल्याला पॉझिटिव्ह आला असतं, बरोबर आहे. पण आपण या व्हॅल्यूज वरून जातो, याच्यावरून जावं लागलं आपल्याला, म्हणून आपला आन्सर कधी असं विचारतात की E0 सेल कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा की सेल रिॲक्शन स्पॉन्टिनियस आहे की नॉन स्पॉन्टिनियस. ही सेल रिॲक्शन कशी असेल, म्हणजे त्यांनी दिलेल्या कनेक्शन प्रमाणे बॅटरी चालेल का? नाही. नाही. ओके, कळलं तुला बरोबर? हो सर. Okay. Now, page 118, question number 2 and 8. See here, I'll share the questions. They have given the half reaction. Au3 plus aqueous plus 3 electron gives you Au, correct? Au3 plus इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन रहेगा? Au3 plus इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन रहेगा? रिडक्शन. Mg in the solid state gives you Mg2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. Mg इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन रहेगा? ऑक्सीडेशन, बरोबर. तो नाउ वी गॉट Au का रिडक्शन हो रहा है, मतलब Au विल एक्ट एज अ कैथोड एंड Mg का ऑक्सीडेशन होता है, Mg विल एक्ट एज अ एनोड, करेक्ट. तो अभी उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे हेडिंग खाली क्या ही है, फॉर्मुलेट सेल. सेल फॉर्मुलेट करो. सेल क्या करना है, हमें फॉर्मुलेट करना है, सेल को फॉर्मुलेट करना है, मतलब सेल का फॉर्मुलेट करना. तो हमें पता चला एनोड कौन है, मैग्नीशियम. तो एनोड कैसे लिखोगे, देखो Mg और Mg2 प्लस है, तो सबसे आउटसाइड में क्या आएगा, Mg इन कॉन्टैक्ट विथ आयन. यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है, आयन Mg2 प्लस आयन, और Mg2 प्लस आयंस का उन्होंने एक्वियस बोला, ये हमारा एनोड बन गया. आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे Mg और एनोड, जब हम एनोड लिखेंगे सबसे आउटसाइड में क्या लिखोगे, मेटल. मेटल के इंटीरियर में क्या लिखना है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस और गैस, और उसके इंटीरियर में क्या लिखना है, आयन. लेकिन यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है, डायरेक्टली आयन है. ये हमारा एनोड बना. अभी कैथोड, कैथोड कौन बन रहा है, एल्यूमिनियम, सॉरी Au, गोल्ड, ऑरिक. तो Au इन द सॉलिड स्टेट इन कॉन्टैक्ट विथ, यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखना है मुझे, Au3 प्लस इन द एक्वियस. ये हमारा सेल फॉर्मूला है. तो मुझे इक्वेशन से पता चला कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या एक्ट करेगा, कैथोड, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनोड. उन्होंने वैल्यूज वगैरह नहीं दिए, तो जब उन्होंने वैल्यूज नहीं दिए, खाली हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द हाफ रिएक्शन who will act as a cathode and who will act as a anode. ओके, त्यांची गरज आहे इथे, इथे नंबर वगैरे नाही लिहायचे, फक्त फॉर्म्युला सिम्बॉल लिहायचा. 1 मोल 2 मोल वगैरे काय लिहायचे नाही, फक्त एक फॉर्म्युला लिहायचा. करायची असते by 2 and multiply second equation by 3 and then get the reaction. Okay, now here we have finished with this first part. We have finished with what, cell formulation, cell कसा फॉर्म करायचा. We have finished with the shape and we have learned one formula, correct. Now I told you all in the last lecture
न्यूमरिकल अँड आस्क टू कम्प्लीट. मग त्या न्यूमरिकल मध्ये कोणाला डाऊट आहे का? सांगा बघू. जर कोणाला डाऊट वगैरे काही न्यूमरिकल मध्ये असतील तर सांगा. हॅलो सर. हा येस. सर ऑक्सिडेशन हाफ रिएक्शन असेल मग मास ऑफ प्रोडक्ट कसं कॅल्क्युलेट करायचं?